Hello student, we started the next life process, respiration. Respiration, a metabolic process in which breaking down of food. When food break down, it gives the energy. Is it clear? So respiration, it is a metabolic process in which breaking down of food when we respire or when oxygen involve in it. When oxygen involve in it or when this oxygen it breaking down the food, it gives CO2, H2O and a lot of energy. Is it clear? Respiration, a metabolic process in which the breaking down of food in presence of oxygen which gives CO2, H2O and energy. Breaking down of food means C6H12O6. It breaking down when oxygen is react with it and it form the CO2, H2 and energy. It means we say that the oxidation of food or we say that the respiration is a oxidation process. Why oxidation of food? Because the carbon get oxidized, hydrogen get oxidized and it also give the energy. So respiration is exothermic and oxidation process, and breaking down of food means the oxidations of food. Is it clear? So the respiration is a process in which the food get oxidized and it form the CO2, H2O and energy. Before starting the types of the respiration, how it occurs in unicellular, multicellular and in plants, we started the activity 6.4 and I explain you activity 6.4. Look here, there are actually two test tube. Both test tube A and B, it contain lime water. The formula of lime water is calcium hydroxide CaOH whole twice. You clearly observe that in test tube A, the air is entered with the help of a syringe or pichkari. In test tube B, the air is entered with the blowing air by a human. In test tube B, हम बात करें यहाँ पर in test tube B, when a human it blow air inside it, suddenly the lime water turn into milky. In lime water, when human blow air, the lime water turn into milky color appear, and the milky color is by formation of CaCO3, calcium carbonate and H2O. There is actually equation that the lime water when it react with CO2, it form the CaCO3 and H2O, and the milkish color of the calcium hydroxide is due to the formation of CaCO3. टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर ह्यूमन ने एयर ब्लो किया है, सडनली उसका जो कलर है चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है. रीज़न क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ. टेस्ट ट्यूब A, same, it also having the lime water. When the air is passed with the help of a syringe or pichkari, the air it have the composition of O2, CO2 like this, and it also
change into milkish color calcium carbonate, but after such time both the test tube color will change into milky color, but in test tube B it fastly change into milkish color, or first it change into milkish color, but in test tube A it change into milkish color after such time. It means we say that during exhalation process this process is due to the blowing of air by humans. It means during exhalation the human exhale more CO2 than the air. Human exhale CO2 more than air. कि एक्सेलेशन प्रोसेस में ह्यूमन जो है वो CO2 जो है वो ज़्यादा निकालता है, किससे, यानी कि एयर के कंपोजिशन से ह्यूमन के अंदर CO2 का एक्सेलेशन है वो ज़्यादा होता है। क्लियर। तो लाइम वाटर मिल्की हुआ दोनों ही टेस्ट ट्यूब में होगा, लेकिन बी में फास्ट होगा, है ना, क्योंकि CO2 का फॉर्मेशन मेन में ज़्यादा होता है, ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा होता है, और टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कुछ टाइम बाद में होगा। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एयर के अंदर, है ना, उसका जो कंपोजिशन होता है या फिर एक्सेलेशन होता है वो लेट होता है या थोड़ा सा देर से उसके साथ में प्रोसेस्ड होता है। क्लियर। तो एक्टिविटी 6.4 किस बेस पर है, एक्सेलेशन ऑफ CO2 एक्सेल हुई और उसने लाइम वाटर को मिल्की किया, और ह्यूमन से एक्सेल होने वाले जो CO2 है उसका परसेंटेज जो है वो एयर के कंपोजिशन से ज़्यादा होगा। मोर CO2 इज एक्सेल बाय ह्यूमन देन एयर। Is it clear? Now activity 6.5. Activity 6.5. In activity 6.5, it is also based on the exhalation of the CO2. In test tube A, actually we are taking the two test tube A and test tube B. This activity shows that actually the exhalation of CO2 or carbon dioxide is processed during the alcoholic fermentations. मीन्स एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस की यहाँ पर बात चल रही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर या तो हम कुछ फ्रूट जूस या कोई शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर ले सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यहाँ पर लिया है फ्रूट जूस, और बी के अंदर यहाँ पर हमने लिया है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टेस्ट ट्यूब ए जिसके अंदर हमने फ्रूट जूस लिया है उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट में कुछ ईस्ट पाउडर को मिक्स करेंगे। वी टेकिंग टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए इट कंटेन्स सच फ्रूट जूस एंड देन वी एडिड सच ईस्ट पाउडर। द टेस्ट ट्यूब बी इट कंटेन लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वी पुट अ सिंगल माउथ कॉर्क on test tube A and join both the test tube by using a delivery tube. Single mouth cork and join a bent tube, or it is called a deliver tube. It connect both the test tube and mind it that when we join a bent tube, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, है ना, इसका जो फर्स्ट एंड है वो उस सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका जो एंड है उस ट्यूब का वो टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर हमने लाइम वाटर ली उसके अंदर कम्प्लीटली डिप होना चाहिए, है ना। मीन्स हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर फ्रूट जूस और ईस्ट पाउडर डाला, और एक टेस्ट ट्यूब उसके पास में रखी है बी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है, और दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने एक बेंट ट्यूब या डिलीवर ट्यूब से इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया है।
डिलीवर ट्यूब का जो फर्स्ट एंड है वो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर और उसका एंड जो है वो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर उसके अंदर डिप नहीं होना चाहिए, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो डिलीवर ट्यूब है उसका एंड जो है वो उसके अंदर इमर्ज होना चाहिए, उसके अंदर डिप होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब ए जिसके अंदर क्या था, फ्रूट जूस और ईस्ट पाउडर था, सडनली इसके अंदर इवोल्यूशंस होता है किसका, बबल्स का, इवोल्यूशंस ऑफ बबल, इवोल्यूशंस ऑफ बबल, इवोल्यूशंस ऑफ बबल। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई गैस है जो इवॉल्व हो रही है। गैस जो इवॉल्व हो रही है वो इस डिलीवर ट्यूब से होता हुआ किसके अंदर जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर लाइम वाटर है, और सडनली ये जो लाइम वाटर है वो टर्न हो जाता है किसके अंदर, मिल्की कलर के अंदर चेंज हो जाता है। लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की, रीज़न कि जो इवॉल्व गैस है जो इसके अंदर है, इस ट्यूब के अंदर, वो कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने इस लाइम वाटर के साथ में क्या किया, रिएक्ट किया और उसको चेंज कर दिया किसके अंदर, मिल्की कलर में। अगर इस कॉर्क को हटाकर अगर इसकी हम स्मेलिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें अल्कोहल की स्मेल आएगी, स्मेल ऑफ अल्कोहल। ये जो सॉल्यूशन है ना, उसकी स्मेल कैसे आएगी, हमें अल्कोहलिक आएगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं इस एक्टिविटी के बेस पर कि यहाँ पर ईस्ट पाउडर की प्रेजेंस में फ्रूट जूस के अंदर क्या हुआ है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, जो जनरली लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, और जिस प्रोसेस को एक्चुअल में हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। तो अल्कोहल का बनना यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जिसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 होता है। तो CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है जो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। इट मीन्स द एक्टिविटी 6.5 इज सेज दैट द CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द alcoholic fermentation or during anaerobic respiration. Activity 6.5 is says that the carbon dioxide is produced during alcoholic fermentation. ये CO2 इवॉल्व होगी और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को बताएगी। ये एक तरह का क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ना, जिसकी स्मेल, इस सॉल्यूशन की स्मेल जो है वो किसकी जैसी आएगी, लाइक अ अल्कोहल। Is it clear? Okay, student. So now we start respiration process. Respiration, as I told you, a metabolic process in which the food molecule get oxidized and it form the CO2, H2O and energy. That process is called the respiration. The types of respiration. The two types of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. Types of respiration, two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration means a type of respiration which held in presence of oxygen. ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ऑक्सीजन क्या करती है, बॉडी के अंदर जाकर जो फूड मॉलिक्यूल है उस फूड मॉलिक्यूल की क्या करेगी, ये ब्रेकिंग करेगी, यानी कि उसका क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। ब्रेकिंग करना, फूड का क्या करेगी, ब्रेकिंग करेगी, और ब्रेक करके ये क्या बनाएगी, इट फॉर्म द CO2, H2O एंड गिव्स एनर्जी। एनर्जी कौन सी, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which is in presence of oxygen which break down the food molecule and it give rise the
CO2 or it form the CO2, H2O and energy as a form of ATP, that is adenosine triphosphate. Is it clear? Anaerobic respiration, or respiration in which food molecule is breaking down. Food molecule is breaking down in absence of oxygen. A type of respiration in which the food molecule is breaking down in absence of oxygen, है ना. ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होगी, एब्सेंस होगी, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट फॉर्म द इथेनॉल और वी से दैट इट फॉर्म द अल्कोहल. जैसा अभी मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था कि फूड मोलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना, एनाएरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए जहाँ पर, तो फूड मोलिक्यूल की ब्रेकिंग होगी, जिससे फॉर्मेशन होगा किसका, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, है ना. फूड मोलिक्यूल का ब्रेकिंग होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और साथ में ये बनाएगा CO2, इवॉल्व करेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस में, इवोलोनिल, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. मीन्स सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये फूड मोलिक्यूल का क्या है, बर्निंग ऑफ फूड मोलिक्यूल, एंड इट इज एक्चुअली अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. एरोबिक रेस्पिरेशन, presence of oxygen, breaking down of food into CO2, H2O and energy. Anaerobic, in absence of oxygen, food molecule is breaking down into alcohol, CO2, and it also give rise the energy. Is it clear? So two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट होंगे CO2, H2O एंड एनर्जी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट होंगे अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन को जनरली हम बर्निंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल या ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस. क्लियर? और ये कैसा होगा, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है ना. नेक्स्ट वी स्टडीड दैट हाउ द फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फूड मॉलिक्यूल. देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल. लुक इन योर रीडर. There is figure 6.8 breaking down of glucose by various pathways. The glucose molecule is breaking down. ब्रेकिंग डाउन हो रहा है. रेस्पिरेशन जिसमें फूड मोलिक्यूल का ब्रेकिंग होता है. हम ये बोल रहे हैं कि फूड जो ब्रेक हो रहा है हमारी बॉडी सेल के पास में क्या है, ग्लूकोज मोलिक्यूल्स है. इस ग्लूकोज मोलिक्यूल की ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में ये हमारी बॉडी सेल के अंदर किस तरह से ब्रेक होता है, ग्लूकोज, है ना, इसका ब्रेकिंग हो रहा है. ब्रेकिंग इन बॉडी सेल. तो जब ये ग्लूकोज की ब्रेकिंग डाउन होती है हमारी बॉडी सेल के अंदर, तो वहां पर टू प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. देयर इज एक्चुअली द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. दो प्रोसेस कौन से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज क्रैब प्रोसेस. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और इट इज़ कॉल्ड दी क्रैब साइकिल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. हम एक्चुअल में कह रहे हैं कि फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग डाउन हो रही है. फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग डाउन होना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग डाउन होना. ब्रेकिंग कहाँ पर हो रही है, बॉडी सेल के अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी की सप्लाई किस तरह से होती है.
तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग डाउन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं या दो साइक्लिक चलते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड क्रैब साइकिल्स। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक ऐसा साइकिल जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो ब्रेकिंग है, किसकी? ग्लूकोज की ब्रेकिंग है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग हो जाता है किसमें? पाइरूवेट के अंदर। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पाइरूवेट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल की जब ब्रेकिंग होती है तो वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट के अंदर चेंज हो जाता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट। पाइरूवेट है ना, तो मीन्स ये ग्लूकोज का पाइरूवेट में चेंज होना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये प्रोसेस होता कहाँ है? ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है किसमें? पाइरूवेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, प्रोसेस हो गया ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस होगा का हमारी बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इट मीन्स हम ये लिखते हैं C6H12O6, ऐसा हम लिखते हैं ग्लूकोज के लिए जनरली। और पाइरूवेट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H4O3 प्लस इट गिव्स एनर्जी। मीन्स जब ग्लूकोज की ब्रेकिंग होगी तो ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होगा। और 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम जनरली बोलते हैं पाइरूवेट, जो कि C3H4O3 होगा। और उसी समय हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी की सप्लाई भी होगी। देन दिस पाइरूवेट चेंज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग डाउन होता है ना। कहाँ पर होता है ब्रेकिंग डाउन? 3 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन मसल सेल। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम एक से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि मसल सेल्स के अंदर भी हो सकता है और ईस्ट सेल्स के अंदर भी हो सकता है, जिसको हम लैक ऑफ ऑक्सीजन ऐसा भी हम कह सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन जो ईस्ट सेल फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स के अंदर होगा। तो एक तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये दोनों ऑक्सीजन के एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो आपकी रीडर के अंदर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पाइरूवेट के अंदर चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, और पाइरूवेट प्लस एनर्जी की सप्लाई होती है बॉडी को। और 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में चेंज हो जाता है। ये जो पाइरूवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मसल सेल्स के अंदर होगा, और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो ईस्ट सेल जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। क्लियर? तो ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसमें पाइरूवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, वो किसका फॉर्मेशन करेगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकिंग डाउन होगा पाइरूवेट, और ये बना देगा CO2 H2O, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी उसी समय। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। कितना? 38 ATP मॉलिक्यूल का प्रॉफिट होता है। और ये जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ पर होगा? जिसमें पाइरूवेट जो है वो
ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये जो प्रोसेस है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में क्या होगा, पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2, H2O एंड 38 ATP मोलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। मीन्स एक ग्लूकोज मोलिक्यूल के ब्रेकिंग से 2 पायरुवेट मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज मोलिक्यूल C6H12O6, जस्ट उसका हाफ हो गया 3 कार्बन मोलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल के ब्रेकिंग डाउन से 2 मोलिक्यूल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस या ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। पायरुवेट जो है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा और ये फॉर्मेशन करेगा CO2 का, H2O का, और हमारे बॉडी को एनर्जी की जो सप्लाई है वो होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। 38 ATP मॉलिक्यूल का प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारी बॉडी सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और इस प्रोसेस या साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। तो हमारी बॉडी को 38 ATP एनर्जी का जो प्रॉफिट है वो किस में होगा, क्रैब साइकिल के अंदर होगा। और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। नेक्स्ट हम बात करें ईस्ट सेल। ईस्ट सेल जो है वो इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट का जो कन्वर्जन है वो किस में करेगा, तो ईस्ट सेल जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगी C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। प्लस क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो इथेनॉल के साथ में यहाँ पर बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और हमारी बॉडी को यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई भी होगी, है ना। मतलब जब जहाँ पर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी मिलेगी। ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ईस्ट सेल्स में होगा। या फिर ईस्ट पाउडर अगर हम किसी फूड मॉलिक्यूल के अंदर डाल दें तो उस समय अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल, C2H5OH, जिसको जनरली हम ऐसा कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी सेल के अंदर होगा, और बॉडी सेल कौन सी, यानी मसल सेल्स के अंदर होगा, है ना। कब होगा मसल सेल्स के अंदर, है ना, जब ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, मीन्स हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस समय हमारी बॉडी की सेल को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसी समय हमारा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा हार्ट है वो फास्ट बीट करने लग जाएगा, जिससे हमारी उन मसल सेल्स को इम्प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जितनी ऑक्सीजन को मिल जाए इतना होगा नहीं, है ना। तो क्यों, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन जो है वो उतना फास्ट प्रोसेस से नहीं होगा जितनी इन मसल सेल्स को रिक्वायरमेंट है, जिससे मसल्स टायर्ड हो जाएंगे और मसल्स के अंदर कुछ टाइम बाद क्या आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा। क्रैम्प क्यों आया, क्योंकि जो पायरुवेट है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाई, जिससे हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड। ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, C3H6O3। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा जो एनर्जी जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और जिससे हमारे मसल सेल्स जो हैं वो टायर्ड हो जाएंगी और उसमें क्रैम्प आ जाएगा। क्योंकि हमारे मसल सेल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कुछ जो एनर्जी पायरुवेट की ब्रेकिंग होगी तो एनर्जी का इवोल्यूशन होगा। क्लियर। सो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन, है ना। अगर आप चाहें तो अपनी रीडर के अंदर ये देख सकते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6 है, उसके ब्रेकिंग डाउन होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो हमारी बॉडी सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होगा C3H4O3 के अंदर, और उसी समय हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो पाइरूवेट है इसके अंदर एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस ईस्ट सेल के अंदर होगा, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट है वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी की सप्लाई होगी, है ना। यहाँ पर जो कार्बन मॉलिक्यूल बना है वो कौन सा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना है, C2 लिखा है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पाइरूवेट कितना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन या इम्प्रॉपर सप्लाई होना, ये कहाँ पर हो रहा है, हमारी बॉडी सेल के अंदर। तो हमारी बॉडी के मसल सेल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिससे कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा C3H6O3, और उसी समय एनर्जी की सप्लाई भी होगी, लेकिन एनर्जी जो है वो इम्प्रॉपर सप्लाई होगी, जिससे मसल सेल्स टायर्ड हो जाएंगे और उसमें क्रैम्प आ जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पाइरूवेट है वो ब्रेकिंग हो जाएगा किसमें, CO2 में, वाटर में, और एनर्जी, कितनी एनर्जी, 36 ATP एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें पाइरूवेट जो है वो CO2, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होगा। और इस प्रोसेस को या इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है पाइरूवेट में, तो ग्लाइकोलाइसिस। पाइरूवेट से CO2, वाटर और एनर्जी का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैब cycle. Is it clear how the glucose molecule is breaking down? So there is actually the 3 pathways: in presence of oxygen, in lack of oxygen, and in absence of oxygen. Aerobic respiration, anaerobic respiration, it is also called as the fermentation process, which end product is always CO2. Okay, so I told you that when the pyruvate breaking down in mitochondria, when pyruvate breaking down into mitochondria, it form the CO2, H2O and 38 ATP एनर्जी का प्रॉफिट होता है ना। तो ATP क्या है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मीन्स कि ये एक फॉस्फेट मोलिक्यूल्स है। जब ये इस फॉस्फेट मोलिक्यूल का यूज़ होता है, यानी कि जो ट्राइफॉस्फेट मोलिक्यूल है, तो इसका ब्रोकन हो जाता है ना, ब्रेकिंग होगा। ATP ब्रेकिंग किस में ब्रेक हो जाएगा, ये वाटर के अंदर इसकी ब्रेकिंग होगी, जिससे ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ADP में। ADP यानी कि ATP का सीधी सी बात हमें कह रहे हैं कि ATP, जितना ATP का हम यूज़ करेंगे तो ATP जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ADP में, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये है ट्राइफॉस्फेट। जब वो वाटर के अंदर ब्रेकिंग होगा उसका, तो उसका डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ATP चेंज हो जाएगा किसमें, ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। और उसी समय हमारी मतलब ये धीरे धीरे जो ATP है उसका यूज़ होगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, नर्व कंडक्शन होगा, यानी नर्व इम्पल्सेस, और कई सारी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ भी होंगी। देन ये ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, निकोटिनोमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP कन्वर्ट इनटू ADP, ADP convert into NADP and NADP convert into NADPH2,
है ना, धीरे धीरे एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर वापस से हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो जनरली इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी सेल के अंदर होता है। यानी कि एक ऐसे रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई होती है। तो सेलुलर प्रोसेस तो है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, मतलब एंडोथर्मिक है, जब एनर्जी जो है वो मतलब यूटिलाइज हो जाती है, और मतलब किस में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर जनरली इसका यूज़ हो जाता है। क्लियर। अब जब हम एक्चुअली बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो हम बात करेंगे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम प्लांट्स में बात करें, तो प्लांट में जो जनरली जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट के 2 ऑर्गेन के अंदर होता है। रेस्पिरेशन, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट के अंदर कोई पर्टिकुलर ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। प्लांट के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए वेयर द स्टोमेटा प्रेजेंट, तो आपका आंसर होगा इट इज़ प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स और ऑन लीव्स। और स्टोमेटा के अलावा लेंटिकल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, और जो लेंटिकल्स है वो जनरली स्टीम में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किससे होगा, तो प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, और हमें पता है स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग है प्लांट लीव्स के अंदर जो गैसेस के एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है ना। और प्लांट के अंदर और क्या प्रेजेंट है, तो प्लांट के अंदर लेंटिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं जो उसकी स्टीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करती है ना। और हमें पता भी प्लांट में स्टोमेटा किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। प्लांट जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करती है ना। इसी तरह जैसे हम बात करें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जनरली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस है वो किससे होता है, मतलब रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है, किसका, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस और मटेरियल, है ना। कहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशंस की ओर। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसा है, ये क्या है, अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस बॉडी के अंदर, कौन सी बॉडी, यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से इस अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर करेगी, और जहाँ पर ये जो ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होगा और फॉर्मेशन होगा किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 का फॉर्मेशन होगा, और CO2 जो है वो एक्सेल हो जाएगी। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी स्पेशल यहाँ पर कोई भी ऑर्गेन नहीं है, तो उनकी बॉडी जो सरफेस है, बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा बाय अ सिंपल प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो देखिए प्लांट में तो स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिकल्स के थ्रू होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें बॉडी सरफेसेस के थ्रू जनरली होता है। और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बॉडी सेल से या फिर हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है ना। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है
ना एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गन्स को हम जनरली बोलते हैं गिल्स, जो रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है, यानी गिल स्लिट्स होती है, कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह जैसे हम आर्थ्रोपोड इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट के अंदर है ना, उनके अंदर एक स्पाइरकल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम ऐसा हम बोलते हैं। प्लांट्स में तो होगा ये स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन या बॉडी सरफेस के थ्रू, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जनरली ये गिल्स के थ्रू होता है ये प्रोसेस, और जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम जो होता है वो रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है वो एटमॉस्फेयर के साथ में कुछ टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर, और उन टाइनी जो होल्स है उसको हम स्पाइरकल्स ऐसा बोलते हैं। या फिर उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। लेकिन जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स देखें, जैसे हम बात करें रेप्टिलियंस की, बर्ड की, है ना, ह्यूमंस की, तो इन सभी में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा बोलते हैं, है ना, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि जो वर्टिब्रेट्स है वो जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स ऐसे कहे जाते हैं। रेप्टिलियंस है ना, तो रेप्टिलिया एक वर्टिब्रेट्स है, बर्ड एविज में आता है वर्टिब्रेट्स से, तो हायर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें जनरली लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर एक्चुअली वी स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, respiration in plants and respiration in human. So respiration process means the structure of the respiratory system and their mechanism that I teach you in my next video lecture. Thank you.